Good evening, everybody. It's so lovely to see so many women and males. Some few, but still. 2047, 100 years, a dream by our Prime Minister to make our country a developed country. Economics and finance says that if more than 50% of your women are not part of your workforce, you wouldn't be developed. And that means a wealthy woman would mean a healthy woman. And to make a healthy woman, we need to make them competent about and create an awareness to deal with modern lifestyle problems. And looking at that, we at AMA decided to have a topic that might be considered by some as taboo, but still with so much help from Chaitali ji, she was so ready to go forward with it. We decided to have a topic of empowering her, understanding hormones, PCOS and menopause for mom and daughters. How many of y'all are moms out here and daughters? Okay, so it's, oh, okay, that's a pair, mom and daughter pair. So it's like a date for mother and daughter. Okay, so I welcome you all, and it's an applaud on our behalf to you all for joining this session. And thank you, Chaitali ji, for coming. So I'll, in accordance with our UN International Women's motto of this year, which is invest in women and accelerate progress, we at AMA have started today is our first event that we are going to do for the women. We don't believe in celebrating one day. We are going to celebrate the whole month as a Women's Month. So be active for the other programs also, which we will list down later. And I welcome you heartily for this first event, which we are going to start. And I'll just introduce you Ms. Chaitali ji. Ms. Chaitali Khamar is a dietitian and women health coach. She is working specially for reversal of PCOS and menopause by balancing hormones with balanced diet and lifestyle modification. This was her humble 2-line bio. Only when pressed did she tell me that she has herself faced menopause. Her daughter has faced the PCOS problem. એટલે ભૂગત ભોગી છે એના પરથી she started studied dietitian course when her daughter had almost completed her studies. Her son had passed out 12th standard. At that age she went forward, and now she's a certified Reebok instructor. She's an author. She has written 2 books, Ultimate Secret to Wealth and 5 Pillars for Happy Menopause. Health and wealth બંને સાથે coordinate કરીને. And she studied, and she was even a dietitian at Sims Hospital. And Amna, she was so enthusiastic. She's saying, I'm studying still for the gynec issues also. I'm doing more and more studies. I said, you are an inspiration for us, for the young us to be so educative even at this age. Welcome, Chaitali ji. I welcome you with this small token of our love. And now, not taking more time, I hope we'll love to hear from you. So I hand over the dais to you. Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. I'm not able to hear still. Good evening. Good evening. Nice, nice. सबसे पहले जब हम टॉपिक आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, किस कौन सी लैंग्वेज पे मैं जाऊँ? हिंदी. ओके, श्योर. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आज 1 मार्च है और आज हमारा है कॉम्प्लीमेंट डे. तो सबसे पहले आज आप इतने सारे काम छोड़ के यहाँ पे आए हो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो, किस तरह से अपने फैमिली के लिए अवेयर हो. क्योंकि जो वुमन अपने लिए हेल्दी और अवेयरनेस क्रिएट करती है, वो फैमिली हेल्दी और हैप्पी ही होता है, राइट? तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी मैं करवाऊंगी. एक हाथ अपना राइट हैंड अप कीजिए और अपने पीछे शोल्डर पे बोल दीजिए, यू आर ऑसम. क्योंकि हम लोग दूसरों को तो बार बार ऑसम बोलते हैं, पर अपने लिए कभी हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं. और आज 1 मार्च को कॉम्प्लीमेंट डे है,
तो इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी करवाई। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आपकी एनर्जी हाई रखिए ताकि स्पीकर की एनर्जी हाई रहे, राइट? आप अच्छे से, जितनी आप एनर्जेटिक रहोगे उतना आप सेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और अच्छे से अपने लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाओगे। तो वी आर स्टार्टिंग अवर सेशंस और उसके रिलेटेड ही है कि हाउ हार्मोन्स प्ले रोल इन योर पीसीओएस एंड मेनोपॉज ड्यूरिंग, जब भी वुमेन की लाइफ में बार बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बहुत सारे ऐसे स्टेज है जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शी इज फेसिंग लॉट्स ऑफ फिजिकल, इमोशनल और वी कैन से कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी कभी कभार उसको होते हैं। तो उसके रिलेटेड ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आर यू ऑल रेडी? सबसे पहले हमने कर दिया कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। नाउ थोड़े बहुत रूल्स है, बहुत बेसिक है वर्कशॉप के लिए। सबसे पहले आज आप यहाँ पे आए, दैट शोज कि आप अपने लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करते हो। दैट इज यू आर टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली। उसके बाद आता है ग्रोथ माइंडसेट। कभी हो सकता है कि जो बातें मैं बोलूं कभी कभी आपने कहीं पे सुनी भी होगी, पर एटलीस्ट अपना ग्रोथ माइंडसेट रखिएगा ताकि आप ये जो भी चीजें आज सीखोगे तो वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाओगे। आगे होगा क्वेश्चन आंसर्स। जो भी क्वेरीज आपको होगी तो बीच में सेशंस के टाइम आई विल नॉट एबल टू आंसर, पर उसके लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होगा वहां पे आई विल आंसर एवरी क्वेरी ऑफ योरसेल्फ। सो बीच में प्लीज आप मार्क ऑन या अपनी पार्क कर दीजिएगा क्वेश्चन और लास्ट में आई विल बी एबल टू आंसर दैट। प्रैक्टिस काइंडनेस। जो भी चीज अगर किसी की कोई यहाँ पे अभी तो ऑफलाइन है इसलिए अगर कोई लाइट ऑफ हो गई, कोई क्वेरी आ गई, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया, तो प्लीज बी साइलेंट एंड बी काइंड फॉर योरसेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स ऑल्सो। एंड हाई एनर्जी, एज आई टोल्ड यू कि जिस तरह से आप रिस्पॉन्स करोगे, जिस तरह से मेरे क्वेश्चंस को आप रिस्पॉन्स करोगे, उस तरह से हमारी पूरे एटमोस्फियर की एनर्जी बनी रहेगी। सो बी एनर्जेटिक, ओके? So today is our topic, how you can naturally reverse hormonal imbalance, PCOS and menopause. ये बातों पे आज हम लोग concentrate करने वाले हैं। तो नंबर 1 is understanding the root cause. Actually hormonal balance होता है तो क्यों होता है और किस तरह से वुमन की लाइफ में अफेक्ट करता है। उसके बाद आएगा पावर ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरह से हम लोग अपनी डेली डाइट से और लाइफस्टाइल, छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। दैट वी आर गोइंग टू लर्न। उसके बाद आएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे कि मैंने बोले कि छोटी छोटी, हमें ऐसा नहीं है कि कल से हमें जिम ज्वाइन कर देना है, कल से हमें 50 मीटर्स दौड़ना है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम लोग हमारे रूटीन में ही ऐसे चेंजेस करें कि ताकि वो चेंजेस हमारी लाइफटाइम रहे और हम लाइफस्टाइल हेल्दी रह सके। उसके बाद है होलिस्टिक अप्रोच। हम लोग सिर्फ डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज ऐसी बातों पे नहीं बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1 इज मेंटल हेल्थ, नंबर 2 इज इमोशनल हेल्थ एंड नंबर 3 इज फिजिकल हेल्थ। क्योंकि जब हम ये तीनों पे काम करेंगे तभी हमें प्रॉपर हमारा रिजल्ट मिलेगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू वर्क ऑन होलिस्टिकली। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अगर हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, कहीं पे जाते हैं, अगर हम शॉर्टकट में जाते हैं तो फिर हम जल्दी तो पहुंच जाते हैं, पर हमें वो जर्नी का मजा आता है? नहीं आता है। उसी तरह से अगर वी वांट टू एंजॉय अवर जर्नी रिलेटेड टू अवर हेल्थ, रिलेटेड टू अवर वेट लॉस, रिलेटेड टू अवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, तो हमें अच्छे से अपनी जर्नी एंजॉय करते करते आगे जाना है। ऐसा स्ट्रेस नहीं फील करना है कि मुझे कल से डाइट करना पड़ेगा, मुझे कल से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हमने नहीं, बट आई विल बी एक्साइटेड। तो अच्छी तरह से हम लोग अगर कोई काम करते हैं शॉर्टकट्स के बिना, अच्छी तरह से मोटिवेटेड रह के करते हैं, तो वी आर गोइंग टू अचीव वेरी नाइस रिजल्ट और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमारे रहते हैं। अब हम देखेंगे hormones and its impacts on PCOS और menopause.
ज़्यादातर मैंने बात की है कि हार्मोन्स हमारी लाइफ में इन अ वुमेन्स हेल्थ हर स्टेज पे वो रोल प्ले करता है। नंबर 1, उसके जब मीनाक पीरियड आता है, मतलब उसके जब पीरियड शुरू होते हैं, टीन एज की जब बच्चियां होती है उनके पीरियड शुरू होते हैं, तब उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और हार्मोन्स आगे पीछे होते हैं, जिससे उसका पीरियड्स आते हैं। और उसमें कई बार बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होती, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल बहुत हमारी ऐसी हो गई है, हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है, मल्टीटास्किंग हम लोग कर रहे हैं, इसके कारण स्ट्रेस भी बहुत है और उसके कारण कभी कभार पीरियड्स में उनको प्रॉब्लम आती है, जिसको हम पीसीओएस और पीसीओडी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी में जब वो स्टेज होता है जब एज अ वुमन हम हमारी लाइफ से दूसरी लाइफ को हम लोग बर्थ देते हैं, और वहाँ पे भी वो टाइम पे भी बॉडी वुमेन्स की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, तो वो भी एक स्टेज होता है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, दैट इज मेनोपॉज। आजकल ये इतना अनटच टॉपिक है कि मेनोपॉज रिलेटेड वुमन को पता ही नहीं चलता है कि कब वो मेनोपॉज में एंटर हो रही है, कब उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं फेस, और वो सारी चीज़ों को हम लोग रिलेट करते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। क्योंकि मिडल एज वुमन अगर आपके घर में भी अगर होती है, कि अगर आपकी मम्मी होती है या हमारी जैसी एज की, मतलब आप लोग महसूस करते होंगे कि घर में बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कितना चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, क्यों ऐसा करती है, पहले तो ऐसा नहीं करती थी। बट दैट ऑल आर बिकमिंग बिकॉज ऑफ हार्मोनल केओस। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली 3 बहुत मेन स्टेज है वुमेन की लाइफ में। एक मीनाक, जब उसके पीरियड शुरू होते हैं, एक प्रेगनेंसी, और थर्ड है मेनोपॉज, जहाँ पे हार्मोन्स का केओस होता है, और अगर हमारी डाइट लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं होती है तो वो हमारी बॉडी पे क्रिएट और इम्पैक्ट करता ही है। Now, shall I introduce myself? अगर आपकी परमिशन हो तो। Yeah. I am Chaitali Khamar. I am a dietitian, diabetic educator, women's health coach, life coach, Reebok fitness instructor, and image consultant. I am author of my 2 books, that is Ultimate Secrets to Wealth with Brian Tracy, and this is my own book, that is 5 Pillars for Happy Menopause. I am felicitated by these celebrities. फिलहाल मेरे VTV पे अभी एपिसोड्स आए थे रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ ओनली। दैट वाज, वन वाज रिलेटेड टू हार्मोन्स, वन वाज रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ हेल्थ, एंड वन वाज रिलेटेड टू स्पेशली मेनोपॉज। एंड व्हाट इज माय मिशन? एज आई सेड कि जब मैं ये सारे स्टेजेस से क्रॉस कर चुकी हूँ, और वहीं पे मैंने मेरा मिशन बनाया है कि आई विल बी हेल्पिंग PCOS एंड मेनोपॉज वुमन को उनके PCOS या मेनोपॉज सिम्टम्स नेचुरली बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैं उनको रिवर्स करवाती हूँ। एंड दैट इज माय मिशन, कि उनका एक अवेयरनेस क्रिएट करवाऊँ और उनको पता चले कि कहाँ उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दैट सो दैट दे कैन वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो दैट इज माय मेन मिशन। दिस वाज माई सेल्फ बिफोर इन माई 30s, और उसके बाद आई ग्रूम्ड माई सेल्फ, आई स्टडीड फॉर माई सेल्फ, और जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू मेनोपॉज और एजिंग रिलेटेड, वो सारे मैंने अपने आप कवर किए रिलेटेड टू माई नॉलेज एंड ऑल दैट थिंग्स। और ये मेरी डॉटर है, शी वॉज ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हर पीरियड्स। आजकल की लाइफस्टाइल तो हम लोग जानते ही है कि बच्चों को किस तरह का लाइफस्टाइल होता है, तो दैट वाज द प्रॉब्लम, उसको PCOS था, और शी with my guidance she lost her weight from 65 to 55 kg, and her periods became regular, and she can reverse her PCOS at that time. So अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन कल्प्रिट है, कौन हमारी लाइफ में इतना बॉस बन चुका है। तो दैट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एंड कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स एक्चुअली होते क्या है? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम आवर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। वो हमारी एक ग्लैंड होती है जहाँ से वो रिलीज होते हैं,
and slowly and gradually they reach to other parts of the body. As for example, अगर हम बोले तो थायराइड, जो बटरफ्लाई ग्लैंड होती है हमारे नेक में, उसमें थायराइड हार्मोन होता है, पैनक्रियाज होता है जहाँ पे इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, जहाँ पे ग्लूकोज, हम जो भी खाना खाते हैं वो मेटाबोलाइज होता है। इसी तरह से किडनी पे एड्रिनल नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस वगैरह को कंट्रोल करता है। उसी तरह से मैन में टेस्टिस नाम का हार्मोन होता है जो प्रोजेस्टेरोन होता है, और वुमन की ओवरीज में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनता है। इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट दीज आर द बेसिक हार्मोन्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो किस तरह से हार्मोन्स हर एक स्टेज पे क्यों हमें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि दैट जो गॉड ने हमें गिफ्ट दिया था वो अच्छी बहुत नेचुरल वे से, पहले के ज़माने में क्यों हमारी नानी दादी को मेनोपॉज, पीसीओएस ऐसे कोई शब्द सुनाई देते थे, ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कुछ भी सुनाई देता था? नहीं। क्यों नहीं था? बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, उनका डाइट बहुत सिंपल और अच्छा था। इसी तरह से आज की लाइफस्टाइल को हम देखें तो वुमेन के लिए कितने चैलेंजिंग है, लाइफस्टाइल हमारी कितनी हेक्टिक है, मल्टीटास्किंग हम लोग हो गए हैं। एक वुमन है जो घर का भी काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, हस्बैंड को भी, इन लॉज को भी, और अपना प्रोफेशन भी देखती है। तो इससे उसके बहुत सारे मल्टीटास्किंग के कारण उसके बहुत सारे मेंटली स्ट्रेस होता है, जिसके कारण ये हो सकता है। यंग जनरेशन में अगर हम बोले तो जैसे कि पीसीओएस या बच्चों की अगर हम बात करें तो दैट इज रिलेटेड कि वो भी, उनका भी बहुत सारा मल्टीटास्किंग है कि आजकल उनकी फूड हैबिट्स बहुत वो हो गई है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लोग, और स्ट्रेस भी उनको बहुत है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमें डेवलप करना है, अब्रॉड अगर जाना है ये एज पे तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए भी बहुत सारे स्ट्रेस होता है, जिसके कारण बहुत मेन चीज़ है कि जहाँ पे स्ट्रेस होता है उसके कारण हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते ही है, सबसे पहला। दूसरी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले के ज़माने में अगर हम बात करते थे तो हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे वो लोग अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करते थे, भले वो लोग जिम नहीं जाते थे या ऐसा कुछ नहीं करते थे, बट दे वर एबल टू हैव गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। उनका वॉकिंग अच्छा था, अगर वो फार्म में काम करते हैं, घर पे भी बहुत सारा अच्छे से काम करते थे, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी थी कि जिससे वो लोग जो भी खाना खाते थे, जो भी सारी चीज़ें होती थी वो अच्छे से उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही थी। पर आज का टाइम ऐसा हो गया है, हम लोग बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। अगर हमें फैन ऑन करना है तो भी हम रिमोट का हेल्प लेते हैं, अगर हमें टीवी ऑन करना है फिर भी हम रिमोट का हेल्प लेते हैं, पानी पीना हो तो हम अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि भाई एक गिलास पानी दे दो। इस तरह का हम लोग सोफे पे बैठते हैं तो वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर। हम सोफे पे 2-3 घंटे तक अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे कि चलो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस में भी कोई काम करते हैं, तो वो भी एक तरह का ऐसा ही होता है कि हम लोग बिल्कुल खड़े नहीं होते हैं, कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है और डेस्क पे बैठे बैठे हम लोग काम करते रहते हैं। तो जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा। उसके बाद आता है लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। जो डाइट की हम लोग स्ट्रेस की हम लोगों ने बात की, अब हम लोग बोलेंगे पुअर डाइट की। जिस तरह से आजकल की एक फैशन हो गई है कि वीक में एक बार तो रेस्टोरेंट में जाना ही जाना है, अगर कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर तो कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे कोई ड्राई स्नैक्स ऐसा कुछ मंगवाना ही मंगवाना है। और जोमेटो और स्विगी वालों ने तो बिल्कुल हमें इतना वो कर दिया है कि कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो हम लोग कुछ हेल्दी ऑप्शन सोचते ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं। तो पुअर लाइफस्टाइल और पुअर डाइट ये दोनों तो बहुत बेसिक चीज़ है हमारी, जो हमारी लाइफ में बहुत केओस कर चुके हैं। उसके बाद आता है डिस्टर्ब स्लीप। आजकल रात को कोई, मैं आपको नहीं पूछने वाली हूँ कि कौन कितने बजे सोता है और कौन कितने बजे रील्स वगैरह रोल ऑन करता है रात को, बट 80% ऑफ आवर ऑडियंस, इवन मी ऑल्सो समटाइम्स, कि होता है कि हमें एक रील देखे, 2 रील देखे, 3 रील देखे, फिर देखते ही जाते हैं, आधा पौना घंटा कब चला जाता है हमें पता नहीं चलता। और उसके बाद हम लोग अगर सोने का ट्राई करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू स्लीप,
क्योंकि एक तो हमारा मल्टीटास्किंग माइंड है, रात को हम लोग दूसरे दिन की इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं कि कल क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, और साथ साथ में जो हमने मोबाइल वो देखा हुआ है उसकी लाइट्स भी हमारी आँखों में आ चुकी है, जिससे हमारे मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, जिसके कारण हम रात को सो नहीं पाते हैं। रात को सो नहीं पाते हैं इसलिए दूसरे दिन हम बहुत लेथार्जी फील करते हैं। दूसरे दिन लेथार्जी फील करते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो हमें स्वीट क्रेविंग्स, चटपटा खाने को हमें वो ज़्यादा एनकरेज करता है। फ्रिज में कोई आइसक्रीम पड़ा हो खा लेते हैं, टॉफ़ी पड़ी है वो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रात की नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई, जिसके कारण कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ा है और जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ साथ में अगर हम बोले कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, कि आजकल हम लोग बहुत सारी ऐसे कॉस्मेटिक्स चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स आते हैं कि अच्छी ब्रांड का अगर ना हो तो वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होके हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। उसके बाद अगर माइक्रोवेव में हम लोग प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं रीहीटिंग के लिए, दैट ऑल्सो क्रिएट्स हार्मोनल इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। उसके बाद अगर हम बोलते हैं ना कि फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना फिर से हम लोग प्लास्टिक में गर्म करते हैं, रीहीट करते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कारण है कि जहाँ पे हर रोज की लाइफ में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होता है। हम लोग कितनी चीजें तो हमें पता भी नहीं होगी कि किस तरह से ये होती होगी। आज अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 90% ऑफ द फीमेल आर हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू पीरियड्स, रिलेटेड टू इरेगुलर पीरियड्स, और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे दे आर कमिंग फॉर मी टू कंसल्टेशन। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह की लाइफस्टाइल आज लोग जी रहे हैं। तो रिजल्ट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस जिस पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू पीसीओएस एंड मेनोपॉज। What are the common symptoms of PCOS and menopause? सबसे पहले हम बात करेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? एट द एज ऑफ 40 और बिटवीन 40 to 45 अगर आपके पीरियड्स इरेग्युलर हो रहे हैं, अगर आपके बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं जैसे कि वेट गेन स्पेशली ऑन द बेली फैट, थाइज, अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, दूसरे दिन आपको बहुत नींद आ रही है, लिथार्जी फील हो रहा है, आपको एक वीकनेस फील हो रहा है कि पूरा दिन आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत फटीग आपको लगता है कि जैसे कि कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे बहुत सारे हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, हेयर लॉस, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर क्लिनिकल। उसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज फिजिकल। हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे हार्मोन्स हमें पता चल रहे हैं, पर अंदर तो उससे भी ज्यादा गड़बड़ी चल रही है हमारी बॉडी में, दैट इज फिजिकल। हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स क्या होता है कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन फील करती है लेडी। अगर हम लोग बोले कि वो एज होती है बिटवीन 40 to 45, यहाँ पे लेडी एक ऐसे मुकाम पे आ चुकी होती है कि जहाँ पे उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उसका हस्बैंड बहुत अपने बिजनेस में या कहीं पे बहुत बिजी है, तो वो अपने आप को आइसोलेट फील करती है, क्योंकि अब तक उसकी लाइफ थी कि उसके बच्चे के लिए वो पूरी अपना टाइमिंग निकालती थी, अपने हस्बैंड के लिए टाइमिंग निकालती थी, पर अब कोई उसके लिए कुछ ऐसा टास्क ही नहीं है कि जिसके लिए वो काम करे, तो उसको बहुत आइसोलेट फील होता है। और इसके साथ साथ इमोशनली भी वो बहुत अपने आप को डिप्रेस फील करती है। अपनी बॉडी इमेज, वेट गेन जो बढ़ गया है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, स्किन पिगमेंटेशन बढ़ गया है, तो उसका एक इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं, वो बहुत लोअर हो गया है, इसलिए वो सोशलाइजिंग भी करना बंद कर देती है। आप देखते होंगे कि ये एज पे बहुत सारी वुमन को हम लोग बोल सकते हैं कि डिवोर्स के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, मैरिटल अफेयर्स भी ये एज पे बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे वुमन अपने हॉर्मोन्स के रिलेटेड अपने जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसका लो लिबिडो होता है, सेक्स ड्राइव उसकी बिल्कुल कम हो जाती है रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस और मेनोपॉज। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इमोशनल हम लोग बोल सकते हैं कि इमोशनल भी हम लोग अपने बॉडी के लिए बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। हम लोग अगर कोई हमें
गाइड करता है कि आप ये करो वो करो, तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने थक चुके होगे अपने लिए कि नहीं यार बहुत कुछ ट्राई कर दिया पर अब कुछ नहीं करना है। इसलिए बहुत सारे ऐसे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम से वुमन जूझ रही होती है रिलेटेड टू मेनोपॉज। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पीसीओएस में भी वही सारी चीजें होती है। एक तो टीनेज गर्ल्स होती है या वो नियर अबाउट 20 to 30 के आसपास जो वुमन होती है उसको पीसीओएस ज्यादातर होता है। उसमें सबसे पहला होता है कि डिफिकल्टी इन चाइल्ड बेयरिंग। अगर कोई लेडी है, उसका मैरिज हो चुका है पर शी इज हैविंग पीसीओडी और या पीसीओएस, तो उसको चाइल्ड बेयरिंग या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, उसके चेस्ट या यहाँ पे अपर लिप्स पे ग्रोथ होता है, हेयर ग्रोथ, जो हम लोग बोलते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, की जो एंड्रोजन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है जो मेल हार्मोन होता है, और इसीलिए हमारे चेस्ट यहाँ पे चीन पे और अपर लिप्स पे ये सारे बाल उठते हैं। दैट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी पीसीओएस। दूसरा, हमारे नेक के आगे पीछे अगर बहुत कालापन होता है, दैट इज पिगमेंटेशन जैसा। अगर हम कोई टीनेज गर्ल को देखते हैं या कोई 20 या 30 के बीच की कोई लेडी को अगर पीसीओएस या पीसीओडी होता है तो उसका पिगमेंटेशन भी यहाँ पे होता होगा, दैट यू कैन सी। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है कि जैसे कि स्किन में प्रॉब्लम होता है, और मेन प्रॉब्लम उसका क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं ये टाइम पे, क्योंकि जो ओवल्यूशन प्रोसेस होनी चाहिए बिकॉज ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में वो टाइम पे बढ़ चुके हैं, तो जो एग्स एवोल्यूशन होके एज अ मेंस्ट्रुअल श्रेड होने चाहिए हमारी बॉडी में, वो एग मैच्योर ही नहीं होते हैं और छोटे छोटे दानों के जैसे सिस्ट बन जाते हैं इन द ओवरीज, एंड दैट क्रिएट्स हार्मोनल इम्बैलेंस एज वेल एज इरेगुलर पीरियड्स। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, हेयर के प्रॉब्लम होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जहाँ पे वो गर्ल या कोई यंग लेडी ये सारी चीज़ें फेस करती है। दैट इज बिकॉज ऑफ पीसीओएस। अगर 15 to 30-35 के आसपास अगर प्रॉब्लम होते हैं हार्मोन्स के, तो दैट कैन बी रिलेटेड टू पीसीओएस या पीसीओडी। और 30-40 के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स और ये सारे सिम्टम्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। व्हाट इज पीसीओडी? जो मैंने समझाया वही, हार्मोनल डिसऑर्डर अमंग रिप्रोडक्टिव एज, मल्टीपल सिस्ट, जो मैंने बोले कि जो एग्स मैच्योर नहीं होते हैं और वो सिस्ट के जैसे जम जाते हैं, छोटे छोटे दाने हमारी ओवरीज में बन जाते हैं, और उसके रिलेटेड कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी, कोई अगर इंसुलिन बहुत सारा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारा कार्ब्स हम लोग लेते हैं, सिंपल कार्ब्स जैसे कि मैदा हो, बेकरी आइटम्स हो, अगर हमारा डाइट में वो सारी चीज़ें बहुत है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में होगा। दैट मीन्स कि मैंने अभी बताया आपको कि पैनक्रियाज में जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबोलाइज करता है, जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करता है। तो अगर वो हम लोग बहुत सारा अमाउंट, इतना सारा, अगर हमारी बैग इतनी है, कोई हमें इतना सामान देगा तो हम उसमें ले लेंगे, पर अगर हमारी बैग इतनी है और कोई हमें इतना सारा सामान देगा तो हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। उसी तरह से पैनक्रियाज में भी ये सारी चीज़ें होती है कि वो इंसुलिन नाम का हार्मोन मैनेज नहीं कर पाता है, कि जो हम लोग सिंपल कार्ब्स, शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और जिसके कारण वेट गेन हो जाता है और पीसीओडी और पीसीओएस हो सकता है। उसके बाद होता है जनरली डायग्नोस एट द एज ऑफ 20s और 30s। मैंने जैसे कि बोला कि अर्ली 20s 30s के आसपास होता है पीसीओडी या पीसीओएस, और उसके बाद अगर होता है तो दैट इज रिलेटेड टू मेनोपॉज। अगर हम बोले तो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स, इरेगुलर पीरियड्स, हेयर ग्रोथ ऑन चीन, वेट गेन, स्किन डार्कनिंग, नेक एरिया, स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है इमोशनल, एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज इश्यू, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, सोशल एंजाइटी, लो एस्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस, ये सारे हमने अभी डिस्कस किए।
उसके बाद आता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स जो मैंने अभी बोला कि बहुत चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है कि अगर कोई बच्चा हो या घर का कोई भी, मतलब हमें अगर कोई परेशान करता है तो हमें ऐसा फील होता है कि क्या करूं, इसको पता नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मुझे, हमें ऐसा फील होता है। बट उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। बट दैट नीड्स अ अवेयरनेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मेमोरी लॉस, बार बार बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती होगी कि फ्रीज के पास, किचन से फ्रीज पर जाती होगी, फ्रीज के पास हम लोग क्यों आए थे लेने को, क्या चीज लेने को, फ्रीज खोल के हम लोग खड़े रहेंगे, क्या लेने आई थी मैं, भूल जाते हैं भी। दैट इज बिकॉज ऑफ मेमोरी लॉस, कि उसमें हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इमोशनल सेंसिटिविटी, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में होने लगते हैं। अब हम बोलेंगे कि व्हाट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज का भी वही चीज है कि दैट इज नेचुरल प्रोसेस। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिसीज डिसऑर्डर हो गया है ड्यूरिंग मेनोपॉज। वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी लाइफ में, जो हर एक वुमन की लाइफ में आता है। एक हार्मोनल शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है। अब मेनोपॉज के 3 स्टेज होते हैं जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। 1 इज पेरीमेनोपॉज, नेक्स्ट इज मेनोपॉज इटसेल्फ एंड थर्ड इज पोस्ट मेनोपॉज। क्या होता है, ब्रीफली आई एम गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू दैट कि पेरीमेनोपॉज ये स्टेज क्या होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि आपका पीरियड्स इरेगुलर हो चुका होगा, 2-3 महीने पीरियड्स आएंगे, 2-3 महीने मिस आउट हो जाएंगे, फिर से 2-3 महीने आएंगे, फिर से 2-3 महीने मिस आउट हो जाएंगे, और हार्मोनल केओस और बहुत सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए आगे, वेट गेन, इमोशनल, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आप महसूस करोगे तो आपको पता चले यहाँ पे हमारे पीरियड्स बंद नहीं हुए हैं, जस्ट इरेगुलर हुए हैं। उसके बाद आता है मेनोपॉज इटसेल्फ, जहाँ पे 12 महीने तक अगर हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, दैट फेज इज नोन एज मेनोपॉज। 12 महीने तक अगर हमारे पीरियड्स नहीं आए हैं तो दैट मीन्स कि अब आप मेनोपॉज में हो। उसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज में भी बहुत सारे हार्मोन थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, पर अगर आपने ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज अच्छे से अपना डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है, हेल्दी डाइट लिया हुआ है, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे थोड़े सिम्टम्स स्लो डाउन हो जाएंगे, वरना कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे कि थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ऑस्टियोपोराइसिस बोल सकते हैं, दैट इज वीकनिंग ऑफ द बोन। ये सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हो अगर आपने ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा है, और बहुत सारे सिम्टम्स आप महसूस कर सकते हो। ये सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स है। वेट गेन, हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस एक ऐसा आज का सिम्टम है कि आउट ऑफ 10, 8 वुमेन आर फेसिंग रिलेटेड टू हॉट फ्लैशेस। कि रात को हम लोग जब सोते हैं तो एकदम से हमारे नेक एरिया में और हमारे फेस पे हमें बिल्कुल एकदम गर्मी का महसूस होता है, स्वेटिंग होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग रिलेट नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि एसी बंद हो गया है, पर एसी बंद नहीं हुआ है। दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आप पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज स्टेज में हो तब। उसके बाद आता है इरेगुलर पीरियड्स, नाइट स्वेट, स्लीप डिस्टर्ब। बहुत आउट ऑफ 10, 9 वुमेन आर हैविंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टर्ब स्लीप, क्योंकि उनकी स्लीप रात को डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरे दिन वो लोग बहुत अपने आप को लिथार्जी और वीकनेस फील करते हैं। उसी तरह से इमोशनल, मूड स्विंग्स, इरेलिबिलिटी, फीलिंग फटीग, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, जो मैंने बताई कि बॉडी इमेज के कारण बहुत सेल्फ एस्टीम उनका लो हो जाता है, वो कहीं पे आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता है, और नेगेटिव बॉडी इमेज। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? क्या सिर्फ हम अपने डाइट पे काम करेंगे तो दैट इज ओके? क्या हम लोग सिर्फ माइंडसेट पे काम करेंगे तो दैट इज ओके? और क्या सिर्फ हम बोथ डाइट और माइंडसेट पे अपना काम करेंगे तो दैट विल वर्क? यस। हमें तीनों चीज पे, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों चीजों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी हम ये सारी चीजें इरेडिकेट नेचुरली कर सकते हैं।
This is a case study of my client. She was 28 years old and her name was Sarah. She was struggling with lots of weight gain और उनकी एज के हिसाब से उनको PCOD डायग्नोज हुआ था. अब एक चीज़ बताओ कि PCOS और PCOD आपको पता है कि वो दो चीज़ होती क्या है. PCOS मतलब पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब कोई एक या दो चीज जो मैंने आपको बताई उसमें से अगर एक या दो चीज अगर आप महसूस करते हो दैट इज PCOS. और PCOD मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ आप महसूस करते हो, दैट इज अ टोटल डिसऑर्डर. बहुत सारे सिम्टम्स अगर आप महसूस कर रहे हो दैट इज PCOD. और PCOS होती है सेम चीजें, पर अगर बहुत सारे सिम्टम्स अगर आप फील करते हो दैट इज PCOD और एक या दो सिम्टम्स अगर आप फील कर रहे हो दैट इज PCOS. तो शी वॉज हैविंग इरेगुलर पीरियड्स और उसका वेट गेन बहुत हो गया था और उसके लिए वो टीन एज की लड़की मतलब थी. तो उसको ऐसा फील होता था कि मुझे कहीं आना जाना नहीं अच्छा लगता, मेरे फ्रेंड्स मेरे बहुत मजाक करते हैं, पार्टीज में वगैरह कुछ आना जाना अच्छा नहीं लगता था, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो चुका था. तो इनिशियली हम लोगों ने उसकी डाइट, लाइफस्टाइल और इमोशनल हेल्थ के सेशंस लिए और उसके बाद विद इन 3 months शी गॉट लॉट. बहुत अच्छा उसका वो रहा था कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छे से. आई टुक द सेशंस रिलेटेड टू दैट. उसका डाइट बहुत अच्छे से हम लोगों ने मैनेज किया. शी वॉज वेरी डेडिकेटेड. हम लोग जानते हैं कि यंगस्टर ये सारी चीज़ों में बहुत डेडिकेटेड और बहुत डिसिप्लिन होते हैं. अगर एक बार वो लोग ठान लेते हैं कि करना ही है तो 101% they are going to do that. So she worked very dedicatedly on herself and she got a very good result related to that. She is her, because of some reason I am not able to reveal her face, but she was her transformation. ये दूसरी केस स्टडी है हमारी रिलेटेड टू मेनोपॉज. अगेन सेम चीज़ कि वुमन थी, उसका बहुत सारा हार्मोनल केओस था और उसके पीरियड्स बंद हो चुके थे, उसको बहुत सारे मेंटल इश्यूज थे रिलेटेड टू हर रिलेशनशिप विथ हर हस्बैंड, रिलेटेड टू हर बॉडी इमेज. बहुत सारे जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. और विद इन द 3 months शी इज़ अ विजया, हर नेम वॉज, एंड शी लॉस्ट 7 kg ऑफ वेट, जहाँ पे उनके बहुत सारे हार्मोनल अच्छे से मैनेज हो पाए. उसके पीरियड्स भले बंद हो चुके थे पर शी वॉज एबल टू मैनेज हर सेल्फ वेरी वेल. और उसकी एक लाइफस्टाइल अच्छे से हो गई है जो अभी भी वो फॉलो कर रही है. एंड दैट्स वाई शी कैन. वो बहुत डिप्रेस थी क्योंकि वो टाइम पे उनके दोनों बच्चे अब्रॉड पढ़ने चले गए थे. तो शी वॉज वेरी डिप्रेस कि उसको बहुत लोनलीनेस उसकी लाइफ में हो चुका था. एंड दैट्स वाई शी वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, बट शी वर्कड ऑन हर सेल्फ वेरी गुड. और ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है. पूरा सेमिनार हमने देख लिया, तो क्या आप लोगों को पता चला कि किस तरह से हम लोग टिप्स ऑन बैलेंसिंग हार्मोन्स, रिवर्स PCOS एंड मेनोपॉज कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग कोई मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली टॉकिंग रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. What is the role of nutrition? As a dietitian, what is the role of nutrition in your body? How to recover that is PCOS या PCOD या menopause? उसको हम बायोकेमिकल्स रिपोर्ट से भी हम लोग जांच कर सकते हैं और क्लिनिकल जो सिम्टम्स मैंने आपको फिजिकली हमें दिखाई देते हैं उसके रिलेटेड भी हम लोग देखते हैं. और उसके बाद उसका डाइट किस तरह से होगा, किस तरह से उसकी लाइफस्टाइल. अगर बिगिनर है तो वॉकिंग से हम लोग शुरू करवाते हैं. अगर ही थोड़ा बहुत वो लोग एक्सरसाइज या एक्टिवली फिजिकल एक्टिव है तो हम लोग उनको इस तरह से फिटनेस प्लान्स वगैरह प्लान आउट करके देते हैं. तो इस तरह से जो भी क्लाइंट आता है तो कस्टमाइज डाइट प्लान्स, कस्टमाइज उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वी आर प्लानिंग देयर. तो किस तरह से हो सकता है? सबसे पहला होता है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में आजकल हम लोग एक बोलते हैं कि मैं तो डाइट पे हूँ. फैंसी वर्ड हो गया है डाइट. डाइट इज नॉट अ फैंसी वर्ड. डाइट इज वेरी होलिस्टिक वर्ड कि वहाँ पे हम लोग किस तरह से बैलेंस डाइट. क्या होता है बैलेंस डाइट? जहाँ पे सारी बॉडी को हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, दैट इज होल ग्रेन्स होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, फैट होता है. ये सारी चीज़ें हमें अपनी बॉडी को देनी ही देनी है, पर वो किस अमाउंट से देनी है, कैसे देनी है, दैट डिपेंड्स अ लॉट. किस तरह से कौन सी क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं, किस तरह से कौन सी क्वांटिटी में हम लोग. आजकल बहुत ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो
मतलब बिल्कुल ऑयल के बिना खाना पकड़ना शुरू हो गया है, बट दैट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि ऑयल और बटर भी हमारे घी के लिए, ऑयल और घी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लुब्रिकेंट्स होते हैं, हमारी स्किन के ग्लो के लिए, हमारे हेयर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पर हम लोग ऐसी, मतलब डाइट वर्ड आता है ना, तो हम लोगों को एक ही फील होता है कि सूप्स एंड सैलाड होगा, कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लेते हो कि आपके फूड के हिसाब से, आपकी फूड हैबिट्स के हिसाब से आपके लिए डाइट प्लान बनता है, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि डाइट मतलब भूखे रहना है, बहुत सारी चीज़ें खा के, पर कौन से टाइमिंग्स पे खाओ, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ खाओ। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोहा खाते हो, बराबर, पोहा तो आजकल हर कोई खाता है, तो पोहा आर रिच इन आयरन, हम सबको पता है। पर अगर हम विटामिन सी आयरन के साथ ले तो दैट मेक्स आवर बॉडी मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो अगर हम लेमन जूस उसके साथ लेते हैं विथ पोहा, तो दैट मेक्स अ कंप्लीट मील। और जो आयरन हमारी बॉडी में 50 या 60% एब्जॉर्ब होने वाला था बिकॉज ऑफ विटामिन सी, वो 90% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैक्स होते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन पे, जिस तरह से अभी अर्ली डिनर का बहुत अच्छे से ट्रेंड चल रहा है कि सब कुछ अर्ली डिनर करता है, और दैट इज़ वेरी नाइस थिंग कि अगर हम सोने के 3 या 4 घंटे पहले अगर हम अपना खाना खा लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होती है कि दूसरा जो हमारे दिन में होता है कि ड्यूरिंग सन जब राइज होता है तब हमारा फूड अच्छे से होना चाहिए, जब हमारा सन हमारे अप होता है तब हमारा मील अच्छा होना चाहिए, और जब सन डाउन होता है तो तब हमारी मेटाबॉलिज्म थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो हमें इस तरह से खाना है। और अगर हम लोग अर्ली डिनर करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड कि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में अच्छा टाइम मिलता है, पूरी रात उसको मिलती है, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करोगे, और आप दूसरे दिन उठोगे तो आपको बहुत एनर्जी के साथ आप उठोगे। अगर आपने वही चीज़ रात को बहुत देर तक लेट खाया हुआ है, कोई पनीर की सब्जी, पराठा, बिरयानी, ये सारी चीज़ें अच्छे से दबा के खाई हुई है, तो आप देखना दूसरे दिन आपको बहुत लिथार्जी फील होगा, रात को अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, और दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको बहुत वीकनेस या ऐसा कुछ फील होगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा मतलब। तो दैट इज़ कि बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो एटलीस्ट वॉकिंग से भी आप शुरू कर सकते हो। कार्ब्स 2-3 सर्विंग्स एटलीस्ट वेजिटेबल्स के लो दिन में, 2-3 सर्विंग्स कोई फ्रूट्स के लो, अच्छे से जो सारी चीज़ें, बटर मिल्क है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से लो। फैट या में जो हम बोलते हैं घी या ऑयल भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, पर अगेन दैट नीड्स अ प्रपोर्शन, किस तरह का प्रपोर्शन आप लेते हो, दैट डिपेंड्स अ लॉट। तो बहुत सारे ऐसे थोड़े नेचुरल चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए जिम में ही जाना पड़ता है, वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आए, आपको मज़ा आना चाहिए अंदर से, वो चीज़ आप फॉलो करो, तो आप अच्छे से कर पाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए कर पाओगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ करो वो, ये पूरा है कि बैलेंस डाइट जो हमने बात की, होल ग्रेन्स, मिलेट्स इंक्लूड करो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैट्स एंड ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करो। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन इश्यू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और फाइबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फाइबर्स अच्छे से लोगे तो आपका बॉडी में जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है कि हम लोग थोड़ा खा के हमें अच्छा संतोष मिलता है, दैट गिव्स बिकॉज ऑफ फाइबर्स, तो फाइबर्स भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्फ केयर, हमें अपनी केयर लेनी शुरू कर देनी है। अब बहुत लोगों के लिए जी लिया, अब अपने लिए जीना है। सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो भी हमारी चैलेंजेस है हमें उसको एक्सेप्ट करना है पहले, कि वेट लॉस और वेट गेन हो गया है तो हो गया है, हेयर सफ़ेद हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं तो हो चुके हैं, व्रिंकल्स आ चुकी है तो आ चुकी है, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने आप को तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दूसरे आपके बच्चे या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको एक्सेप्ट करेगा।
जो भी है वी आर द बेस्ट। सबसे पहले हमें वो करना है कि अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस लेना है, सेल्फ लव अपने लिए बढ़ाओ, अपनी जो हमें अच्छा लगे उसके लिए पूरे दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हम निकाल सकते हैं अपने लिए। जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें कोई ड्राइंग करना अच्छा लगता है, हमें कोई म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, हमें डांस करना अच्छा लगता है, रूम लॉक करके डांस कर लो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है दैट यू कैन मैनेज, और वो ही आपका एक तरह का सेल्फ लव होगा। दैट इज अ मी टाइम, कि अपने आप से वो टाइम आप लोगे तो आपकी बॉडी भी आपसे हैप्पी होगी। अगर हम अपने बच्चे को टाइम देते हैं तो उसका फ्यूचर संवरता है, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी को भी अच्छे से केयर करनी है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। स्ट्रेस लेस, ट्राई टू हैव, बहुत सारा मल्टीटास्किंग ना रखो, अच्छे से टू डू लिस्ट अपना रेडी रखो कि वीक में क्या चीज़, मेनू भी अच्छा सा बना के रखो कि किचन में कौन से टाइम पे क्या चीज़ें पकेगी, ग्रोसरी लिस्ट अच्छे से मैनेज करो। जो भी अपना स्ट्रेस है रिलेटेड टू योगा और मेडिटेशन करना शुरू करो ताकि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में मैनेज हो पाएगी और आप अच्छे से उसके रिलेटेड हेल्दी वे से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर पाओगे। और सेल्फ डिसिप्लिन, जो भी चीज़ एक बार शुरू की, ऐसा नहीं कि आज 3 दिन डाइट किया, फिर 4-5 दिन दबा के खा लिया, फिर 2-3 दिन एक्सरसाइज की, 2-3 दिन गए ब्लैंकेट में सोते रहे, हो गया। नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन रखो। जो भी चीज़, एक बार में एक ही चीज़ करो, ऐसा नहीं कि कल से सब कुछ करना है। एक बार में एक चीज़, एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो 5 हेल्दी मील्स। एक वीक में 5 डेज हेल्दी खाना शुरू करो, सैटरडे संडे खा लो जो खाना हो। धीरे धीरे वॉकिंग करना शुरू करो, एटलीस्ट 10 मिनट से शुरू करो, दूसरे वीक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा करो, 20 मिनट्स करो, 30 मिनट्स करो, 10 मिनट्स का मेडिटेशन करो। एक एक चीज़ हर वीक इनकॉर्पोरेट करो ताकि आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाओ। How can I help you? Related to customized diet plans, customized fitness plans, accountability. Diet plans तो आपको बहुत सारी जगह मिल गए होंगे, पर कोई आपको डंडा लेके पीछे पड़ना पड़ेगा। आपको व्हाट्सएप पे कोई पूछे कि चलो डाइट प्लान में आज क्या किया, क्या खाया आज, कौन सी एक्सरसाइज की, कितना वॉक किया, अगर कोई आपको वो पूछता है तो यू विल बी डिसिप्लिन्ड, मोर डिसिप्लिन। तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी आपको हो सकती है। फॉलो अप सेशंस हमारे होते हैं रिलेटेड टू आवर क्लाइंट्स, और वर्किंग ऑन योर माइंडसेट, तीनों पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। एंड थैंक यू। So what should I say? I have to give a vote of thanks, but it was so simple, and even it was so simple and basic, yet it covered everything. मतलब इतनी सरल तरीके से आपने समझाया कि हमें समझ, we could understand everything, even layman, because you know we don't understand, a lot of people explain in the medical terms. When we are talking, we want to understand in what मेरे क्या problem है, मुझे क्या समझना है, and that is the way you have explained. So thank you so much, Chaitali ji, for giving your such a precious time and such precious knowledge to us. And I always say कि हम ऑडियंस को भी सेलिब्रेट करते हैं, ऑलवेज फील अपलॉड, वोट ऑफ थैंक्स शुड ऑल्सो बी द ऑडियंस. सो गिव योर सेल्फ ऑल्सो राउंड ऑफ अपलॉज फॉर लिसनिंग एंड बीइंग इन्वॉल्व्ड so patiently in this. And I'll just update you a bit that we have a lot of other programs this whole month. Well, we'll have a lot of MDPs, open forums, advanced certificate programs, and even exam programs. The whole month is the Women's Month. Like we'll be having for business entrepreneurship, and for the personal branding, finance helpful. You can just contact with the office and they'll guide you for all the programs. Be participative, come down and involve yourself. It will only add on to your knowledge. Okay, there's a feedback form as well. Please fill it up. It will help us improve in the further coming lectures. अगर आपके कोई questions हो, you can obviously come down, right? I think you have a coffee out, so you can have it and then you can talk to her personally also. And yes, we at AM have also decided कि अगर किसी को 1-to-1 consultation लेना है चैताली जी से, you can connect with AMA and we could obviously have a small session day or a seminar day when you can individually connect with her with your own problems. Like अगर आपको अपने individually कोई consultation लेना है, वैसे she is always available. She told me कि अगर वो भी नहीं होता तो आप मेरे को directly connect करेंगे, तो that too she is there for you. I hope you enjoyed the session and had a good time. Thank you so much all of you all for attending this. Had a lovely time. Thank you. Have a really
amazing Women's Month ahead. Thank you very much for listening me, and thank you AMA for sharing this amazing platform to me. Thank you. We were honored to have you. Yeah.